Hello everyone, welcome to TYBSc class in Physical Chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और उसके कुछ एग्जाम्पल. आज हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस. When a system after completing series of changes and returns to its original state. This cycle is completed cycle and this process is cyclic process. So क्या हुआ इसका मीनिंग? When a system after completing series of changes and return to its original state, this cycle is known as a completed cycle and this entire process is known as a cyclic process. हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है A convert into B convert into C convert into D and D convert into A. So क्या हुआ इसका मीनिंग? हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? A से. वो हमारा हुआ इनिशियल पॉइंट एंड हमारा फाइनल पॉइंट भी कौन सा हुआ? A. So when a system after completing series of changes and returns to its original state is known as a cyclic process. Cyclic process is imaginary and reversible. Cyclic process depend on imagination and this process is also reversible. Cyclic process का बेस्ट एग्जांपल है कार्नोट साइकिल. Is example of cyclic process. Now we are talking about this कार्नोट साइकिल. बट कार्नोट साइकिल की बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एडियाबेटिक एंड व्हाट इज द आइसोथर्मल. सो आइसोथर्मल in a series of changes and temperature remain constant. So what is the isothermal? In a series of changes and temperature remain constant means
वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चेंज होगा बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. T is equal to 0, constant. We know first law of thermodynamics equation. Q is equal to delta E plus W. So internal energy depend on टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर. सो T is equal to 0, so we can take delta E is equal to also 0. Delta E is equal to 0. Q is equal to 0 plus W. Q is equal to W. This is our first equation. आगे है एडियाबेटिक. In this situation, heat can be no transfer. So in an adiabatic situation, heat cannot be transferred. Q is equal to delta E plus W. Heat can be not transferred. So Q is equal to 0. Delta E plus W. So delta E is equal to minus W. This is our equation 2. So ये बात हुई isothermal and adiabatic. In a Carnot cycle, isothermal and adiabatic दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी हम यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हम कार्नोट साइकिल में अच्छे से समझ पाएगा. लेट वी स्टार्ट कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल. कार्नोट साइकिल में सबसे पहले उसका ग्राफ. प्रेशर अपोजिट वॉल्यूम. प्रेशर अपोजिट वॉल्यूम. Volume. Carnot cycle divide into 4 parts. Carnot cycle divide into 4 parts. First is isothermal expansion. Second one, adiabatic third one, isothermal compression. And fourth one, adiabatic compression. Carnot cycle divide into 4 parts. First one, isothermal expansion. Adiabatic
expansion. Third one, isothermal compression. Fourth one, adiabatic compression. So यहाँ हमें कार्नोट साइकिल का ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपांशन. अब हमें पता है आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर रिमेन constant. Here we are can start point 1 to 2. टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मीन्स T1 में से T1 ही होगा. अब एक्सपांशन का क्या मतलब होगा? एक्सपांशन मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा. अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. P1 में से P2 एंड V1 में से V2. नेक्स्ट एडियाबेटिक एक्सपांशन. Adiabatic expansion in no heat transfer. So temperature T1 में से T2. Here point 3. अब expansion है, so volume increase होगा V2 में से V3 and pressure decrease होगा. अब next point कौन सा है? Isothermal compression. Point 3 से point 4. अब टेम्परेचर आइसोथर्मल कंप्रेशन है मींस टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होगा. सो T2 में से T2 ही रहेगा. कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा. सो P3 में से P4 और वॉल्यूम डिक्रीज होगा. V3 में से V4. हियर नेक्स्ट लास्ट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन. एडियाबेटिक कंप्रेशन इन नो हीट ट्रांसफर, ओनली टेम्परेचर कैन चेंजेस. T2 में से T1 होगा. कंप्रेशन है मीन्स प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा. सो V4 में से V1 एंड P4 में से T1. ये बात हुई कार्नोट साइकिल के ग्राफ की. अब हम स्टार्ट करेंगे कार्नोट साइकिल का इक्वेशन. सो फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल expansion. We know that temperature remain constant. Temperature remain constant. So T is equal to 0, delta E is equal to also 0. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन में Q is equal to delta E plus W. Q is equal to 0 plus W. So Q is equal to W. This is equation first. अब हम आगे बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए whenever work done by the system, work done by the system, so plus work and work done on the system, so minus W. इसी तरह by the system on the minus W. इसी तरह when heat absorb, so plus Q और heat release minus Q. सो इसका क्या मीनिंग हुआ? यहाँ वर्क होगा बाय द सिस्टम एंड हीट होगी एब्जॉर्ब. अब W is equal to we can write force into displacement. W is equal to F into delta X. We know that force is equal to
area into pressure. So P into A into delta x. A into delta x का मीनिंग हुआ एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा V. So P into delta V. W is equal to P into delta V. अब नेक्स्ट होगा, हमें पता है वेन एवर वी गिव एन आइडियल इक्वेशन, सो PV इज इक्वल टू म्यू RT फॉर अ आइडियल कंडीशन. सो आइडियल इक्वेशन, ideal equation, we can take mu is equal to 1 mole. So PV is equal to RT, and here P is equal to RT upon V, we can write. This is equation 2. अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, put this value in equation 1. Equation 2 की वैल्यू इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे. सो क्या हुआ, Q इज इक्वल टू W. Q is equal to W, and W is equal to P into delta V. So P is equal to, we can apply RT upon V. RT upon V into delta V. ये हुआ हमारा इक्वेशन. अब नेक्स्ट क्या होगा, W is equal to RT upon V into delta V. So इसे मुझे डेविएशन फॉर्म में लिखना है, RT upon dV upon V. अब यहाँ हम वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं, V1 में से V2. इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है, RT V1 में से V2 dV upon V. अब उसे लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, RT ln V1 upon V2. V1 upon V2. This is our equation first. इक्वेशन थर्ड नंबर क्या हुआ, W इज इक्वल टू RT ln V1 अपॉन V2. सेकेंड फेज है एडियाबेटिक कंप्रेशन. एडियाबेटिक कंप्रेशन, सो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर होगा T1 में से T2, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा.
P2 में से P3. We know adiabatic means no heat transfer. So delta Q is equal to 0. First law of thermodynamics. Q is equal to delta E plus W. Q is equal to 0, delta E plus W. So delta E is equal to minus W. Delta E is equal to minus W. अब इसका क्या मीनिंग हुआ? माइनस का मतलब हुआ वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन on the system. So minus W is equal to CV into delta T. So CV minus W CV टेम्परेचर में T1 में से T2. सो यहाँ माइनस है. अब मुझे वर्क को प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? प्लस W CV T2 माइनस T1. This is equation 2 and this is work W2. So this is the final equation of adiabatic compression. अब next point है थर्ड फेज है आइसोथर्मल isothermal compression. So isothermal compression in isothermal है means temperature remain constant. तो T2 में से T2 रहेगा. Temperature constant. अब कंप्रेशन है. कंप्रेशन का क्या मतलब होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम डिक्रीज. वॉल्यूम होगा V3 में से V4 और प्रेशर इंक्रीज P3 में से P4. We know that temperature remain constant. So Q is equal to W. W is equal to force into displacement. So force is equal to area into pressure. A into area into displacement is equal to delta V. So W is equal to P into delta V.
W is equal to T into delta V. For an ideal equation, PV is equal to mu RT. Here mu is equal to 1 mole. So P is equal to RT upon V. Put this value in equation 1. Equation 2 value put in equation 1. So क्या होगा? This is third phase. So W3 is equal to RT into delta V upon V. So here मुझे इसे डेविएशन के फॉर्म में लिखना है. So RT dV upon V. यहाँ वॉल्यूम कौन सा है थर्ड फेज में? V3 to V4. RT इंटीग्रेशन V3 to V4 dV upon V. अब मैं उससे लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ? RT log ln V4 upon V3. So this is W3. So this is the final equation of isothermal compression. अब हमें आगे बात करनी है fourth one, adiabatic compression. एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर चेंज होगा. टेम्परेचर T2 में से T1 होगा. अब कंप्रेशन है मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा. T4 में से T1 एंड वॉल्यूम डिक्रीज. V4 में से V1. So we know that Q is equal to 0 for a adiabatic situation. So Q is equal to delta E plus W. Delta E is equal to minus W. So delta E is equal to minus W. Heat. तो इसका क्या मतलब हुआ? Work done on the system. Work done on the system. Minus W is equal to CV delta T. So CV delta T का T2 में से T1. Here this माइनस साइन को मुझे प्लस करना है, तो यहाँ मुझे करना होगा T1 में से T2. सो ये हुआ हमारा फोर्थ फेज एडियाबेटिक कंप्रेशन. सो अभी तक हमने बात की फोर्थ फेज कार्नोट साइकिल के चारों फेज का इक्वेशन हमने मिला. सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन है RT1 ln V2 अपॉन
V1। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का इक्वेशन है CV T2 minus T1। आइसोथर्मल कंप्रेशन का इक्वेशन है RT2 ln V4 upon V2। एडियाबेटिक कंप्रेशन का है C1 T1 minus T2। अब हमें चाहिए नेट हीट। नेट हीट हमें किस में मिलेगी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये दोनों इक्वेशन का हमें प्लस करना है। पहला इक्वेशन क्या है? RT1 ln V2 upon V1 प्लस RT2 ln V4 upon V3। RT1 ln V2 upon V1 plus RT2 ln V4 upon V3। Here प्लस की साइन है, वहां मुझे माइनस चाहिए। वहां मुझे माइनस चाहिए, यहाँ मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। RT1 ln V2 upon V1 माइनस RT2 ln V3 upon V4। अब इस इक्वेशन में R कॉमन निकलता है और T1 माइनस T2 ln V2 upon V1। We know that V2 upon V1 is equal to V4 upon V2। यहाँ मैं V2 upon V1 की जगह V4 upon V2 भी लिख सकती हूँ। ये बात हुई नेट हीट की। अब हमें वर्क के बारे में बात करेंगे। W टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ये चारों इक्वेशन का हमें प्लस करना है। RT1 ln V2 upon V1 हमें फर्स्ट का मिला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। C1 T2 माइनस T1 है, वो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। RT2 ln V4 upon V3 वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन का। CV T1 माइनस T2 वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन का। अब C1 T2 माइनस T1 एंड T1 माइनस T2 वो दोनों रिमूव हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा? RT1 ln V2 upon V1 माइनस RT2 ln V3 upon V4। अब इनमें से R कॉमन निकल सकता है, R कॉमन T1 माइनस T2 ln V2 upon V1। हियर हमने कहा V2 upon V1 is equal to V4 upon V2। ये हुआ हमारा टोटल वर्क। अब हमें बात करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? हमने इनपुट क्या मिला और हमने इनपुट क्या दिया था और हमें आउटपुट क्या मिला। हमारा आउटपुट क्या है? वर्क। और हमारा इनपुट क्या है? हीट। W upon Q, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है? वर्क। R T1 माइनस T2 ln V2 upon V1 एंड इनपुट क्या था? RT1 ln V2 upon V1। this both are remove। क्या मिलेगा लास्ट में? T1 माइनस T2 upon T1। ये हुई हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1। कभी भी हमें 1 से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। ये बात हुई कार्नोट साइकिल के बारे में।